Actually, monsoon has started in Ahmedabad quite early. So, and it's been raining very nicely for last half an hour. So, I got a bit late. Fine. Thank you. Okay, in the last session we have completed question number 36. Today we are starting off with question number 37. Okay, now question number 37 says that, and I would require that if you can mark this question as important one. इसमें एक नई चीज हम लोग करने वाले हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं. Question says that consider the following data relating to 4 securities, K, L, M and N. So these are the 4 securities which are given in the question, along with their expected returns. That is 14%, 16%, 12%, 13%. Variance, again, variance के बाजू में ब्रैकेट में हम लोगों को दिया हुआ है बीटा स्क्वायर. उस बीटा स्क्वायर की जगह पर एडिट करके या फिर कैंसिल करके लिख दीजिएगा सिग्मा स्क्वायर. एज इट इज वेरियंस वी राइट इट एज सिग्मा स्क्वायर एंड नॉट बीटा स्क्वायर. तो वो प्रिंटिंग एरर है, वो सुधार दीजिएगा. उसके नीचे करेक्ट दिया हुआ है बीटा वैल्यू. And we have been given the covariance of K, L, M and N with all 4 of them. Now, on the basis of this information, we are supposed to calculate 4 questions. First one, calculate the proportions of security K and L that represent the minimum variance portfolio. Underline that. Minimum variance portfolio. Second, what is the beta of an equally weighted portfolio of all 4 securities? Third is calculate the variance assuming that unsystematic risk is 0 and market variance is 0.25, and question D is okay. We'll take it one by one, starting with the first part. Now, here in this particular question हम लोगों को 4 सिक्योरिटीज दी गई है. उन चारों सिक्योरिटीज के वेरिएंस दिए हुए हैं, उन चारों सिक्योरिटीज के एक्सपेक्टेड रिटर्न दिए हुए हैं, बीटा वैल्यूज दी हुई है, और उसके बेसिस पर हम लोगों को जो कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन करना है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो. minimum variance portfolio. Now as the word says minimum variance, हम लोगों को एक ऐसा पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है या फिर एक ऐसा पोर्टफोलियो ढूंढना है जिसका वेरिएंस सबसे मिनिमम हो. So what I would suggest is, we need to find the weights of different securities in a portfolio in such a way that
the portfolio should have its variance as minimum as possible. सो जब भी हम लोग मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो की बात करते हैं, वो क्वेश्चन हम लोगों को इनडायरेक्टली ये कहता है कि हम लोगों को ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है या फिर अपनी मतलब ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है जिसका वेरिएंस मिनिमम हो, और ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द वेट्स ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इन सच मैनर कि हम लोग उन सिक्योरिटीज का वेटेज उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि उस पोर्टफोलियो का वेरिएंस हो सके उतना मिनिमम हो. सो इन दैट केस इफ आई वांट टू फाइंड आउट माय वेटेज, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि वेटेज जितनी भी सिक्योरिटीज है उन सबका टोटल वेटेज 1 होगा. सो कंसीडर दैट कि सब सिक्योरिटी का वेटेज 1 है. हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज पार्ट ए. In part A, we have been given the question that calculate the proportions of security K and L that represents the minimum variance portfolio. Now here, if I talk about my security K, that I will be considered as W1, and my security L will be considered as my W2. अब क्योंकि ये दो सिक्योरिटीज है तो इन दोनों के वेटेज का टोटल 1 होना चाहिए. सो W1 plus W2 equals to 1, and therefore I can say that W2 equals to 1 minus W1. अब अगर यहां पर हम लोगों का जो काम है वो है W1 को फाइंड करना. W1 का जो भी आंसर आता है उसे 1 में से माइनस करेंगे तो W2 का आंसर तो मिल ही जाएगा. सो नाउ इन दिस केस W1 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अब इसके लिए अगर मैं आपको सीपीटी में वापस ले जाऊं जहां पर मैथमेटिक्स आप लोगों ने किया था. इन केस ऑफ मैथमेटिक्स यू हैव डन अ चैप्टर कॉल्ड डिफरेंशिएशन. नाउ डिफरेंशिएशन इज समथिंग जहां पर हम लोगों को इस चीज का काम है, minimum variance. So when I talk about minimum variance says that minimum variance means my differentiation of portfolio variance divided by differentiation of the weightage of security 1 will be equal to 0. हम लोग पोर्टफोलियो वेरिएंस और वेटेज का डिफरेंशिएशन उस हिसाब से करेंगे कि मेरा आंसर 0 आएगा. इस चीज को आपकी कोई जरूरत नहीं है या फिर इस चीज की कोई कंसीडरेशन भी हम लोगों को नहीं करना है, बट दिस इज समथिंग वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग इट, द डिफरेंशिएशन कंसेप्ट विच कम्स इनटू पिक्चर. उसका और कोई लॉजिक नहीं है, उसका और कोई रीजन नहीं है, उसको आपको कहीं पर यूज भी नहीं करना है. आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग W1. Now, my W1 equals to sigma 2 square minus covariance of security 1 and 2 divided by sigma 1 square plus sigma 2 square plus 2 into COV for covariance of security 1 and 2. This is going to be my formula. Sorry, यहां पर माइनस है. This is minus. अब यहां पर इस चीज को हम लोग बात करें, इस फॉर्मूला को हम लोग कंसीडर करें तो हमारा क्वेश्चन देखिए. हमारे क्वेश्चन में अब यहां पर हम लोगों को कौन कौन सी चीजें दी हुई है. यहां पर मैं बात कर लेता हूं. सिक्योरिटी 1 इक्वल्स टू K और सिक्योरिटी 2 equals to L. So therefore
मेरा W1 और W2 हम लोगों को ढूंढना है। यहां पर हम लोगों को वेरिएंस दिया हुआ है सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर। देखिए क्या दिया हुआ है। माय सिग्मा 1 स्क्वायर सो मेरा K का वेरिएंस दिया हुआ है 0.23। सो माय सिग्मा 1 स्क्वायर इज 0.23 और L का वेरिएंस दिया हुआ है 0.28। सो माय सिग्मा 2 स्क्वायर इज 0.28 एंड उन दोनों के बीच का जो कोवेरियंस है, नाउ इफ यू कैन लुक इन द सेकंड टेबल में आपको कोवेरियंस दिया हुआ है। इफ यू लुक इन, आपको जो पहली कॉलम है वहां पर K L M N दिया हुआ है, वहां पर K में देखिए और सेकंड कॉलम में L में देखिए। जहां पर K और L इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट सेल इज टॉकिंग अबाउट द कोवेरियंस बिटवीन K एंड L, दैट इज 0.047। So, covariance between 1 and 2, or we can say it as covariance between K and L equals to 0.047. अब सिग्मा 1 स्क्वायर आ गया, सिग्मा 2 स्क्वायर आ गया, COV आ गया। नाउ वी विल पुट दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द आंसर, और आई वुड से फाइंडिंग द W1। अब यहां पर W1 हमारा होगा WK। सो हियर आई कैन से W1 equals to sigma 2 square minus COV12 divided by sigma 1 square plus sigma 2 square minus COV12. And now putting the figures, 0.28 square minus 0.047 divided by 0.23 square, सॉरी इसका स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं ना, डायरेक्ट यही दिया हुआ है। 0.23 प्लस 0.28 माइनस 2 इंटू 0.047। नाउ सॉल्विंग दिस, नाउ माय न्यूमरेटर वुड बी 0.28 माइनस 0.047। द आंसर इज 0.233 divided by 0.23 plus 0.28, 0.51 and 2 into 0.047, that is coming as 0.416, and now 0.233 divided by 0.416, it is coming as 0.56. This is my W1. W1 is coming as 0.56. My W2 equals to 1 minus W1. So that will be 1 minus 0.56. So W2 will be equal to 0.44. So if I talk about these two answers, we can say that proportion of security K 0.56 and security L 0.44 in order to have minimum variance portfolio। मतलब अगर आपको मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको सिक्योरिटी के और एल में इस प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हां, अब ये तो हम लोगों ने कर लिया। इसकी जगह पर अब यहां पर तो हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन दी गई है या जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया वो है कोवेरिएंस के बेसिस पर। नाउ जस्ट अज्यूम या फिर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ देयर इज नो कोवेरिएंस गिवन इन द क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में कोवेरिएंस नहीं दिया हुआ होता तो इन दैट केस अगर आपको कोवेरिएंस नहीं दिया जाता तो फिर दूसरी चीज दी गई होगी, दैट इज व्हाट वी कॉल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एंड इन दैट केस आपके पास एक और फॉर्मूला है विच इज फॉर W1, दैट विल बी रिमेनिंग सेम, सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस ये जो COV है उसकी जगह पर आ जाएगा
माइनस R12 इंटू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, COV की जगह पर ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू R12 इंटू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2. This will be my formula if the COV is not given. So this is my first answer. Now coming to part B. Now part B says that, मेरे पार्ट बी का क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द बीटा ऑफ इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो ऑफ ऑल 4 सिक्योरिटीज. Underline the word equally weighted portfolio. So here beta of equally weighted portfolio of four securities. Now, beta of portfolio is the weighted average of all securities. जनरली हम लोग यही करते हैं कि बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो, बट ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, हम लोगों ने ये 2-3 क्वेश्चंस में भी किया है. व्हेन weights of all securities are equal, then beta can be calculated using सिंपल एवरेज. ये मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर हमारे सिक्योरिटीज का वेटेज इक्वल आता है, then in that equal weighted security we can calculate the beta of portfolio using the simple average. So here we can calculate beta of portfolio by taking the average of the beta of all 4 securities. So the beta of K, L, M and N are 1.05, 1.20. So it will be 1.05 plus 1.20 plus 0.90 plus 0.95 divided by 4. So that will be coming as 4.10 divided by 4, and therefore beta of portfolio equals to 1.025. This will be the answer of second question. Now third question is, what calculate the variance of the portfolio assuming the unsystematic risk is 0 and market variance is 0.25. So now coming to part C. Part C, calculation of portfolio variance.
portfolio variance equals to sigma square P, and which can be known as our total risk. So हम लोगों को total risk find करना है with a condition that the unsystematic risk is 0 and the variance of market is variance of market is 0.25. So here हम लोगों को TR find करना है. हम लोगों को ये बोल दिया गया है that unsystematic risk is 0 and variance of market, that is sigma m square, is 0.25. So here if I talk about, therefore total risk equals to SR plus USR, that is systematic risk plus unsystematic risk. Now we have to find this TR. टोटल रिस्क हम लोगों को फाइंड करना है. ये मैं लिख देता हूं टोटल रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क, इस मामले में हमारा बहुत सारा डिस्कशन हुआ था. दैट देयर वाज अ क्वेरी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन दैट व्हाई डोंट वी कंसीडर बीटा एज द सिस्टमैटिक रिस्क, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड दैट बीटा विल बी कंसीडर्ड एज अ सिस्टमैटिक रिस्क ओनली फॉर CAPM. For overall systematic risk, beta is only the part of systematic risk, and we have written a formula of systematic risk. Systematic risk formula is beta square into sigma m square. अब जो हमारा बीटा स्क्वायर है, तो यहां पर ऑफ कोर्स हम लोगों को पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क फाइंड करना है. सो वी विल टेक द बीटा स्क्वायर ऑफ पोर्टफोलियो. सो बीटा पोर्टफोलियो स्क्वायर और पोर्टफोलियो बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर plus unsystematic risk is 0 as given. So therefore this is something which I have to find out. So equals to my beta of portfolio हम लोगों ने यहीं पर कैलकुलेट किया, so that will be 1.025 square into sigma m square is already given 0.25. So 1.025 square multiply by 0.25, that is giving me 0.263. So इसे हम लोग कह सकते हैं सिग्मा p square, और we can call it as total risk. So my total risk will be 0.263, or we can take it as 26.3%. So this is the calculation of part C, and last is the calculation of part D. Assume that the portfolio is made of the following long and short positions in stock K, L and M. K, L and M. Calculate the expected return and risk. Okay. इस क्वेश्चन में कुछ चीजें मिसिंग है जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं. एक काम कीजिए,
अब क्वेश्चन में तो आपके पास वैसे भी लिखने की जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें लिखवानी जरूरी थी या फिर दी जानी जरूरी थी जो नहीं दी हुई। सो यहां पर मैं आपको जो पार्ट डी का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसी में आप लोगों को मैं बता देता हूं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। ओके, सो यहां पर लिख देते हैं डी। Following data will be given in the question। जो डेटा मैं लिखने जा रहा हूं वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। इस स्टेटमेंट में हम लोगों को ये दिया हुआ है, कंसीडरिंग द लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन ऑफ के एल एंड एम। अब इन तीन सिक्योरिटीज में से कौन सी सिक्योरिटी हम लोग शॉर्ट करेंगे और कौन सी लॉन्ग करेंगे। हां, इसका इनडायरेक्ट रास्ता यह है कि उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दिया हुआ है, बीटा आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप सीएपीएम फॉर्मूला को यूज कीजिए और फिर हम लोग वो डिस्कस करते थे कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, उसके बेसिस पर हम लोग डिसीजन लेंगे कि हम लोग उसे बाय करेंगे या सेल करेंगे। अगर बाय करने वाली सिक्योरिटी है तो उसमें हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेंगे, सेल करने वाली सिक्योरिटी है तो उसमें हम लोग शॉर्ट पोजीशन लेंगे। लेकिन यहां पर दैट इज नॉट अवर कंसर्न। अवर कंसर्न इज कि जिस सिचुएशन में हम लोग के एल और एम को लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उस पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क कितना होगा। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। यहां पर मेरी के एल और एम तीन सिक्योरिटीज है। के इज सपोज टू बी शॉर्ट, L and M supposed to be in the long position। इन लोगों के वेटेज होंगे 50% L का, 80% M का। सो ये 80 और 50 130 हो गए। सो बेसिकली K हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो इसका वेटेज -30% आएगा, बिकॉज द टोटल वेटेज हैज टू बी 1। सो इसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में WI लिखूं, सो दिस विल बी -0.3, दिस विल बी 0.5 एंड दिस विल बी 0.8। इन लोगों का RI और सिग्मा स्क्वायर हम लोगों को दिया हुआ है। नाउ RI इज गिवन एज 14, 16 एंड 12। 14, 16, 12 and this was 0.23, 0.28 and 0.21। इसका हम लोगों को अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को अगर सिग्मा की वैल्यू चाहिए तो। Now in this case we need to find out the return of the portfolio, so RP। So RP will be W1 R1 plus W2 R2 plus W3 R3, so which will be equal to -0.3 into 14 plus 0.5 into 16 plus 0.8 into 12। 14 threes are 42, so -4.2 plus 16 into 0.5 will be 8 plus 12 into 0.8 will be 9.6। So 9 plus 8, 17.6 minus 4.2 will give you 13.4%। So आपका रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा 13.4%। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रिस्क फॉर देम, और आई वुड से वेरिएंस फॉर देम। तो पहले हम लोग वेरिएंस ही कैलकुलेट कर लेते हैं।
अब यहां पर हमारा 3 सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं क्योंकि फॉर्मूला लंबा चाहिएगा। सो सिग्मा पी स्क्वायर इक्वल्स टू W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस 2 W1 W2। यहां पर हम लोग लिखते थे सिग्मा 1 सिग्मा 2 R12। दिस इज व्हाट वी यूज टू राइट, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड R12। अब इस केस में हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं है, सो इस पूरे की जगह वी विल राइट COV12। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर कि अगर कोवेरियंस नहीं दिया गया होगा तो उसकी जगह पर हम लोग ये लिखेंगे R12 इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब अगर ये नहीं दिया हुआ उसकी जगह पर ये लिखेंगे, तो यहां पर ये आएगा 2W1 W2 COV12 प्लस 2W2 W3 COV23 प्लस 2W1 W3 COV13। दिस विल बी योर एंटर फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग अमाउंट्स रखेंगे, सो दिस विल बी -0.3 स्क्वायर इंटू 0.23 प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू 0.28 प्लस 0.8 स्क्वायर इंटू 0.21 प्लस 2 इंटू -0.3 इंटू 0.5 COV12। अब देखते हैं K और L का कोवेरियंस कितना है। वो हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन A करते वक्त देखा था कि उन दोनों के बीच का COV है 0.047। सो ये हो जाएगा 0.047 प्लस 2 और 3, सो 2 इंटू 0.5 इंटू 0.8 इंटू L और M का COV कितना है। सो उसी तरह से फर्स्ट कॉलम में L देखो रो वाइज और थर्ड कॉलम में M देखो, वहां पर जो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं 0.051। सो दिस विल बी 0.051 प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू -0.3 और K और M का कोवेरियंस वो आएगा 0.062। इसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। सो -0.3 का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 0.09। into 0.23 will give me 0.0207 plus 0.5 का स्क्वायर, that will be 0.25 into 0.28, 0.07 plus 0.8 का स्क्वायर, that will be 0.64 into 0.21, 0.1344 plus now 2 into -0.3 into 0.5 into 0.047. Answer is coming as 0.0141, but it will be coming in minus. So minus 0.041. Sorry, minus 0.0141. इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, सो दैट विल बी 2 इंटू 0.5 इंटू 0.8 इंटू 0.051, दैट इज कमिंग एज प्लस 0.0408 एंड लास्ट का आंसर वापिस माइनस में आएगा क्योंकि वहां पर माइनस 0.3 है, सो इट विल बी 2 इंटू 0.8 इंटू 0.3 इंटू 0.062. So that will be 0.03.
So, इसका हम लोग फाइनल समेशन करते हैं 0.0207 प्लस 0.07 प्लस 0.1344 माइनस 0.0141 माइनस 0.03 plus 0.0408. So my final answer is coming as 0.22. So my sigma square of portfolio is 0.22. इसका standard deviation अगर हम लोग करना चाहे, so my standard deviation will be इसका root. It is coming as 0.47. So this is my return of the portfolio, this will be my risk of the portfolio. And this will be the calculation of part ABCD of question 37. Yes, centers, any doubts? फटाफट कॉपी कर लीजिए. We'll start with the next one then. What I said, Vapi sender, weights will be given to you in the question.
Starting with the next one. Now in question number 38. जल्दी लिखो. ओके यस बड़ौदा सेंटर हैज आस्क्ड द क्वेरी दैट हम लोगों ने यहां पर जो वेट फाइंड करने का फॉर्मूला यूज किया है क्या वो हम लोग सिर्फ इसी क्वेश्चन या फिर इसी तरह के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं या हर किसी में. बड़ौदा सेंटर यहां पर इस क्वेरी का आंसर ये दूंगा कि ये फॉर्मूला तभी यूज हो सकता है जब हम लोग मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कैलकुलेट करते हैं. दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द वेट्स ऑफ अदर पोर्टफोलियोज. So that would be the main reason. And when you talk about three securities, मतलब जो बड़ौदा सेंटर की दूसरी क्वेरी है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो 3 सिक्योरिटीज होगी तो कैसे करेंगे, इसका मैं एक और क्लैरिटी दे देना चाहता हूं कि 3 सिक्योरिटीज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप लोग पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में 2 चीजें यूज होती है. आइदर वी आर यूजिंग कोवेरियंस और वी आर यूजिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सो इन दैट केस correlation coefficient and covariance can be there between only 2 securities. तो 3 सिक्योरिटीज के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई फॉर्मूला नहीं है. हां उसमें हम लोगों को यह चीज करना पड़ेगा कि W1 जो हम लोगों ने फॉर्मूला किया है उस तरह से हम लोग W1 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसी तरह का दूसरा फॉर्मूला करके हम लोग W2 कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी कैन टेक W3 एज W3 इक्वल्स टू 1 माइनस W1 माइनस W2. तो उस तरह से कर सकते हैं. अदरवाइज 3 सिक्योरिटीज के लिए वेट्स कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है. सो बी रेस्ट अश्योर्ड अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो 2 सिक्योरिटीज के लिए पूछा होगा. बड़ौदा सेंटर क्लियर? थैंक यू. नाउ स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 38. क्वेश्चन 38 में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी करने जैसा नहीं है. देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला विच आई एम गिविंग यू. आपको सिर्फ उस फॉर्मूला याद रखनी है एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स, यूटिलिटी फैक्टर एंड रिस्क एवर्जन कोएफिशिएंट. सो यहां पर मैं लिख देता हूं calculating expected return on the basis of risk aversion coefficient and यूटिलिटी फैक्टर. इन दोनों चीजों के बेसिस पर आप लोगों को एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है एंड योर फॉर्मूला इज ऑलरेडी गिवन. आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन. U इक्वल्स टू ER माइनस 0.005 into A
yes, into A into सिग्मा स्क्वायर. ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखनी है. दिस इज गोइंग टू बी द सिंपल एंड सेम फॉर्मूला वेयर U stands for utility factor, E stands for expected return, A stands for risk aversion, coefficient, and sigma square stands for variance. Now if you look at the question, हम लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है. An investor with a risk aversion coefficient A equals to 3. So my A equals to 3. Utility factor of 5%. So my utility is given as 5 and my standard deviation, that is sigma, equals to 10. What would be my expected return? तो मैं इसी फॉर्मूला में चीजें रख देता हूं. Therefore 5 equals to expected return minus 0.005 into 3 into 10 square. So 100 into 3, 300 into 0.005. So that will be 5 equals to expected return minus 1.5. ये सामने जाएगा तो ऐड हो जाएगा. Therefore expected return equals to 6.5%. That's it. This is your answer. So ये याद रखिएगा कि जब भी रिस्क एवर्जन कोएफिशिएंट और यूटिलिटी फैक्टर के बेसिस पर आप लोगों को एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना है, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सो यहां पर रिस्क एवर्जन कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहां पर मैं आप लोगों को एक कमेंट लिखवा देता हूं. इफ risk aversion coefficient is high, then the investor is more conservative and he is ready to take more risk only if he is compensated by high return. मतलब ये जो आपका रिस्क एवर्जन कोएफिशिएंट है वो आपकी रिस्क एवर्सिटी दिखाता है. तो ये ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतने आप ज्यादा कंजर्वेटिव होंगे. सो दिस इज योर क्वेश्चन 38. क्वेश्चन 39 कैंसिल कर दीजिए क्योंकि वो ना हमारे काम का है ना उसे कुछ लेना देना है. दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन. सो 39th क्वेश्चन कैंसिल कर दीजिए. नाउ स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 40. Now if you talk about question 40, that is something which is talking about arbitrage pricing model. Question 40, 41 और 42 तीनों एक ही टाइप के हैं. हम लोग पहले मॉडल को समझेंगे, देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 40, 41 और 42 आप लोगों को होमवर्क में करना है. सो नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट वी मीन बाय आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल. One sec.
Now, arbitrage pricing model, or I would say arbitrage pricing theory, it is something which I would say the updated version, or I would say the extended version of CAPM. Why I am saying extended version? क्योंकि हम लोगों ने जो CAPM में कंसीडर किया, we have considered three things in CAPM for calculating the expected return. For calculating of expected return, we have considered risk-free rate, we have considered beta, and we have considered risk premium, that is RM minus RF. But the problem is, in case of the CAPM, it is called single factor model, because in that case, we have got only one beta value. Now, CAPM has got a disadvantage. ज्ञान क्लासेस मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है, ही इज रेडी टू टेक मोर रिस्क ओनली इफ ही इज कंपेंसेटेड बाय हाई रिटर्न. Now, if we talk about this CAPM, it is called single factor model because it has got only one beta value which is being considered in the formula RF plus beta into RM minus RF. But if we talk about practical life, in practical life there are many betas which are available. क्योंकि ये जो बीटा है वो बीटा सिर्फ एक ही फैक्टर का है, जबकि अलग अलग फैक्टर्स के बीटा अलग अलग हो सकते हैं. So if I talk about beta for macroeconomic factors, we can have one beta for GDP, we can have one beta for forex, we can have one beta for interest rates, we can have third beta for let's say money. There are different betas, और अगर इन अलग अलग बीटा है तो हमारी पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोगों को इन अलग अलग बीटास का कंसीडरेशन लेना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाट आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी और आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल टॉक्स अबाउट. सो इफ आई टॉक अबाउट द CAPM, अकॉर्डिंग टू CAPM, RI equals to RF plus beta into RM minus RF. Now here we are talking about arbitrage pricing model. It is considered to be an extended version of CAPM as it uses many beta values as compared to single factor beta in CAPM. According to arbitrage pricing model, RI equals to RF plus UR. Now this is something which is a normal, or I would say general formula, that is saying RF plus UR. Now if I talk about this RF, it is something which we generally call risk-free rate, or I would call it as
predictable return, and UR is something which is called unpredictable return. Now this is the unpredictable part of the return which we are not know, or which is not known to us because of different beta values. So यहां पर हम लोग बात करेंगे इस फॉर्मूला को एक्सटेंड करने की, RF प्लस इस UR मतलब अनप्रिडिक्टेबल रिटर्न के दो पार्ट्स होंगे. वन विल बी कॉल्ड UR मार्केट रिलेटेड and plus UR firm specific. यहां पर जो मार्केट रिलेटेड UR लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट वी कॉल द अनप्रिडिक्टेबल रिटर्न फ्रॉम ड्यू टू, और आई वुड से अनप्रिडिक्टेबल रिटर्न अफेक्टेड बाय मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो जो मैंने आप लोगों को बोला, रियल जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, फॉरेक्स, वो सारी चीजों की इफेक्ट यहां पर दिखेगी. और ये जो अनप्रिडिक्टेबल रिटर्न है दैट इज फर्म स्पेसिफिक, वो फर्म का जो बीटा होगा उसकी वजह से आएगा. सो नाउ इस फॉर्मूला को और एक्सटेंड करते हैं, एंड नाउ वी विल सी कि इस चीज को कैलकुलेट कैसे करना है. नाउ इस चीज को कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे? दिस इज समथिंग विच इज द फॉर्मूला इन वर्ड्स. नाउ आई एम राइटिंग द फॉर्मूला इन डिनोमिनेशंस. RI इक्वल्स टू RF प्लस बीटा 1 इंटू RF1 माइनस RF प्लस बीटा 2 RF2 माइनस RF प्लस बीटा 3 इंटू RF3 माइनस RF प्लस अप टू बीटा n इंटू RFn माइनस RF प्लस UR फॉर्म स्पेसिफिक, और यहां पर भी मैं लिखे देता हूं, चलो, प्लस बीटा ऑफ मार्केट इंटू RFM माइनस RF. ये जो हमारा पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड योर UR फॉर्म स्पेसिफिक. अब इस फॉर्मूला का, पूरे फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग देखिए. रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो, और आई वुड से रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी, इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा ऑफ फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ड्यू टू फैक्टर 1 माइनस रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा ऑफ फैक्टर 2 और बीटा कोएफिशिएंट ऑफ फैक्टर 2 इंटू रिटर्न ड्यू टू फैक्टर 2 माइनस रिस्क फ्री रेट. वैसे ही जितने बीटास दिए गए होंगे वो सब हमको लेने होंगे. सो यहां पर मैं पहले लिख देता हूं RF इक्वल्स टू रिस्क फ्री रिटर्न, बीटा 1 इक्वल्स टू बीटा कोएफिशिएंट ऑफ फैक्टर 1, 1, 2, 3 अप टू n. RF, कैपिटल RF इक्वल्स टू रिटर्न ड्यू टू फैक्टर 1, 2, 3 अप टू n. और इसमें हमेशा याद रखना कि जहां पर आपको मार्केट पोर्टफोलियो की इंफॉर्मेशन दी गई होगी, वेन एवर यू हैव बीन गिवन द बीटा ऑफ मार्केट, वेन एवर यू हैव बीन गिवन द रिटर्न ऑफ मार्केट, जब भी मार्केट या फिर मार्केट पोर्टफोलियो वर्ड यूज किया गया है, दैट विल बिकम योर फर्म स्पेसिफिक UR. तो यहां पर मैंने इसीलिए बीटा M लिखा हुआ है. सो बीटा M इज बीटा ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो
and RFM equals to return from market. RF तो वही है, सब में जो माइनस RF है वो तो रिस्क फ्री रेट ही है. दिस इज योर आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल. और इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे. Now look at question number 40. No, you Gyan Ganga classes. No, you cannot say you are as unsystematic risk. Reasons. अनसिस्टमेटिक रिस्क हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ठीक है, या फिर आई वुड से कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट यहां पर यूआर का मतलब यह है कि वो कुछ ऐसे फैक्टर्स है मैक्रो लेवल पर जो अनप्रिडिक्टेबल है. सो यहां पर यूआर का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल रिटर्न, एंड इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द अनसिस्टमेटिक रिस्क. तो उसे हम लोग सिस्टमेटिक रिस्क के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? एंड दिस इज समथिंग, मतलब ये जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल है उसे हम लोग कहते हैं एपीटी, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी. एंड आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी अज्यूम्स दैट द रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी इज डिपेंडिंग ऑन मैनी मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स सच एज जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, फॉरेक्स, विच आर अनप्रिडिक्टेबल. सो फॉर देम दिस फॉर्मूला इज बीइंग टेकन. Gyan Ganga classes, is it clear? Okay, now look at question number 40. Now question number 40 says that an investor is considering to make an investment in the share. The following are the firm factors that influence the return of the share. तो आप लोगों को factors दिए हुए हैं, underline that sentence. Following are the factors that influence the return. Factor देखिए GNP. Now of course GNP is market related, inflation is market related. Third, interest rate. Interest rate is market related. Fourth, stock market index. Now the stock market index is your market. So as the stock market index is your market, that will become your firm specific. And the fifth is industrial production. So that is your, I would say, fourth one. So यहां पर पहले हम लोग इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं बीटास की. So beta 1. Beta 1 is 1.95, beta 2 is 0.85, beta 3 is 1.20. फिर मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बीटा 4 ले रहा हूं. माई बीटा 4 इज 2.20 and my beta of market is
2.50। अब वहां पर आप लोगों को दी गई है एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है RF1 माइनस RF, तो ये जो आपका आप लोगों को जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, दैट एक्चुअल विल बी कंसीडर्ड एज द RF1, RF2, RF3, RF4 सो ऑन, और ये जो RF लिखा हुआ है दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो हियर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, रिटर्न RF इज रिटर्न फ्रॉम फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एक्चुअल वैल्यू, और ये जो RF है रिस्क फ्री रिटर्न, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे RF1 माइनस RF, तो इसकी जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड एंड सो ऑन। सो दैट इज समथिंग विच वी कैन डू। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई RF1, RF2, RF3, RF4, सॉरी यहां पर मैं लिखूंगा RFM और RF4 और RFM। अब एक्चुअल रिटर्न्स की फिगर्स देखिए, 6.5, 5.75, 6.5, 5.75, 8, 11.5 and 10, 8, 11.5, 10, और यहां पर हर एक का RF दिया हुआ है। अब इसमें एक और चीज भी समझ लीजिएगा कि रिस्क फ्री रेट हर एक के अलग अलग भी हो सकते हैं, हर एक का सेम भी हो सकता है। सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ बाई अज्यूमिंग कि सर रिस्क फ्री रेट तो सबका सेम नहीं होता। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि अलग अलग सिचुएशन में आपके रिस्क फ्री रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। सो योर एक्सपेक्टेड वैल्यूज आर 6, 5, 7, 9.59, 6, 5, 7, 9.59, and now I will be having RI। मैं यहां पर स्ट्रेट अवे फॉर्मूला वापिस नहीं लिख रहा, आई एम जस्ट शोइंग द कैलकुलेशन। RI इक्वल्स टू 1.95 इंटू 6.5 माइनस 6 प्लस 0.85 इंटू 5.57 माइनस 5 प्लस 1.20 इंटू 8 minus 7 plus 2.20 into 11.5 minus 9.5 plus 2.50 into 10 minus 9. This is something which will be called UR firm specific. So now अगर हम लोग इन चीजों को सॉल्व करें, it will be 6.5 minus 6 into 1.95, 5.75 minus 5 into 0.85, 8 minus 7 into 1.2, 2.2, sorry, 11.5 minus 9.5, so 2 into 2.2 and 10 minus 9, 1 into 2.5, and my total is coming as 9.7125%. This is my expected return as per arbitrage pricing model. सॉरी, यहां पर एक और गलती हो गई है मुझसे, सॉरी। यहां पर हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा, दिस फॉर्मूला इज स्टार्टिंग विथ रिस्क फ्री रेट। यहां पर आप लोगों को रिस्क फ्री रेट
स्पेसिफिकली कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। सो ये एक चीज याद रखिएगा, सॉरी यहां पर दिया हुआ है, उप्स। थैंक यू राजकोट सेंटर, थैंक यू बड़ौदा सेंटर। This is 10 and 9. This is 11.5 and 9.5. So here the things will change. This will be 2.2 into 10 minus 9, and this will be 2.5 into 11.5 minus 9. और यहां पर मैं एक चीज ऐड करना भूल गया जो आपको टेबल के नीचे दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट इज 9%। सो दिस विल बी 9 प्लस दिस थिंग। सो इसका कैलकुलेशन आपको वापस करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। So my answer is coming as 19.0125%. This is my RI. Now question number 41. Is similar kind of, but the only difference is you need to calculate it for 3 times, क्योंकि वहां पर आपको 3 स्टॉक दिया हुआ है, ABC, DEF और LKJ। तो तीनों स्टॉक्स को आपको साथ में कंसीडर करना पड़ेगा। एंड वो आपको होमवर्क में करना है 41। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। नाउ इफ यू लुक एट द हेडिंग विच दे हैव गिवन इज मार्केट मॉडल। मार्केट मॉडल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट मॉडल? अब मार्केट मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसका फॉर्मूला है। Now if I talk about the market model is something which is again the comparison of the actual return with your expected return। तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न होगा उसके सामने आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है, कम है या इक्वल है, उसे कंपेयर करने के लिए मार्केट मॉडल यूज किया जाता है। इस टाइप के सम्स में कुछ नहीं होता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको उसका फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला ये है, नाउ if you talk about the market model, now the market model formula is RI minus RF equals to alpha into beta into RM minus RF. I think this should be alpha plus
Yes, it is alpha plus. या फिर यहां पर अल्फा स्टार लिख दीजिए तो अल्फा में और अल्फा स्टार में डिफरेंशिएशन पता चले। अब ये जो मार्केट मॉडल है, ये मार्केट मॉडल की फॉर्मूला है आर आई माइनस आर एफ इक्वल्स टू अल्फा स्टार प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। नाउ दिस अल्फा इज नथिंग but it is known as your alpha star equals to risk adjusted premium, I would say. अब यहां पर जो मार्केट मॉडल में जो चीजें हम लोगों को कंपेयर करनी है वो तीन चीजें करनी है। सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न या फिर प्रीमियम, जो भी आप बोलना चाहे। यहां पर हम लोगों के पास तीन केसेस हो सकते हैं। अल्फा स्टार इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एक्चुअल रिटर्न is more than expected return as per CAPM, means company has performed well, or I would say overperformed. If alpha star is less than 0, that means actual return is less than expected return as per CAPM. That means company has performed bad. And if alpha star equals to 0, that means your actual return equals to expected return as per CAPM, means the company's performance is coincide, or I would say same as CAPM. अब यहां पर सिचुएशन ये होगी कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको ये अल्फा कैलकुलेट करना होगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 43। रिस्क एडजस्टेड, अब देखिए यहां पर रिस्क एडजस्टेड एक्सेस रिटर्न अल्फा वैल्यू दी हुई है। Alpha is given to you in this question. It is 2%. Risk-free rate 6, market return 12, beta 1.45. So, देखते हैं. So here alpha is given as 2, RF is given as 6, RM is given as 12, beta is given as 1.45. सो हम लोगों को RI ढूंढना है। अब देखिए RI की अगर मैं बात करूं, अगर RF सामने चला जाएगा तो वो चलो यहीं पे ले लेता हूं, दैट मीन्स RI माइनस 6 इक्वल्स टू 2 प्लस 1.45 into 12 minus 6. So RI equals to 6 into 1.45, 6 into 1.45 plus 2 plus 6, it is giving me 16.7%. 16.7% as per market model.
अब CAPM की बात करो, सिंपल RI इक्वल्स टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, 6 plus 1.45 into 6. So 6 into 1.45 plus 6. So that is coming as 14.7. अब देखिए, आप ये हो गया मेरा CAPM, ये हो गया मेरा मार्केट मॉडल, एंड दैट इज समथिंग जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, अल्फा इज मोर देन 0, क्योंकि वो 2 दिया हुआ है, एज अल्फा इज 2 इज मोर देन 0, दैट मीन्स योर एक्चुअल रिटर्न इज मोर देन योर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM, दैट मीन्स द कंपनी हैज परफॉर्म्ड वेल. ये आपका सॉल्यूशन आएगा, दैट माई RI एज पर मार्केट मॉडल इज 16.7%, which is more than CAPM, that indicates that the company has performed well. So this is your market model. Yes, centers, any doubts? Okay, that's it. Okay, so here we complete the chapter. As I already told you, you have to come up with your doubts from the homework on Saturday. Yes, Rajkot Center, I know that question 1 and 15 are pending, but I have not done them till now because there are some printing errors. I need to check whether there are printing errors or they are true questions. If they are true questions, then we will do it. Otherwise, we will cancel them. Okay. So that's all for the day. Hope you have enjoyed the session. Thank you so much. Good night. Take care.